बात जानते हैं, in Jesus Christ, यीशु मसीह में by the blood of Jesus, उसके लहू के द्वारा we belong to God as children, हम परमेश्वर की संतान हैं, where there is no one higher, no one lower. जहाँ कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, There is no one very special and no one ordinary. कोई खास या कोई साधारण नहीं, Everyone is so unique that Jesus thought to die for everyone. सब अपने आप में यूनिक है कि यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है। Your value doesn't come from what you do. आपकी उपलब्धि आपके कार्यों से नहीं है, Your value does not come from what people say to you. आपकी वैल्यू लोगों के कथन से नहीं है, Your value does not come from what your circumstances reveal you. आपकी वैल्यू आपकी परिस्थितियों से नहीं है, Your value comes from the shed blood of Jesus Christ. आपके जो वैल्यू है वो यीशु मसीह का रक्त है। Let me tell you one thing, heaven and earth is inferior before you and me. स्वर्ग और ये पृथ्वी आपके सामने छोटी है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, When God had to make heavens, जब परमेश्वर को स्वर्ग बनाने थे, he didn't have to sweat. उसे पसीना नहीं बहाना पड़ा, He just spoke, it happened. उसने कहा और हो गया। When God wanted to create earth, जब परमेश्वर को पृथ्वी बनानी थी, he never had to sweat. उसे पसीना नहीं बहाना He पड़ा, spoke and it happened. उसने कहा और हो गया। Everything that God created, from angels to cherubs to everyone, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया, चाहे स्वर्गदूत चाहे करूब या कुछ भी जो परमेश्वर ने God बनाया, never sweated. परमेश्वर ने इसके लिए पसीना But नहीं when it बहाया। come for our पर salvation, जब हमारे उद्धार की बात that आई, night his blood came out like फिर sweat. उस समय उसका पसीना मानो रक्त के He समान not बहा। only just sweated, he bled. ना सिर्फ उसने पसीना बहाया, पर उसने रक्त Every भी बहाया। drop of his blood was oozed out from his हर body. उसके शरीर का हर रक्त एक एक कतरा बहा। Heaven did not cost him anything. स्वर्ग से उसको कोई कॉस्ट नहीं पड़ा, Earth did not cost him पृथ्वी anything. की इसकी कोई कीमत नहीं थी, Universe and creation did not cost him सारी anything. सृष्टि की उसकी कोई कीमत नहीं थी, Angels could not cost him anything. जो स्वर्गदूत है उनकी कोई कीमत नहीं But थी, your and my salvation costed him his own life. उसका हमारा उद्धार उसके जीवन से है। Never let circumstances tell you that you're ordinary. कभी अपनी परिस्थितियों को ये बताने मत दीजिए कि आप Never let साधारण हैं। anything tell you that you are good for nothing. कभी किसी को मत बता दीजिए कि आप बेकार हैं। My friend, I want to encourage you today आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, not to look at the mistakes that you have done. उन चीजों को मत देखें जो गलतियां आपने की हैं। I stand here as a bundle of mistakes. मैं जब खड़ा हूं, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, Some horrible, बहुत बुरी भी, some very horrible, बहुत उससे भी ज्यादा some बुरी, extremely horrible. और कोई एक्सट्रीमली गलत की है But मैंने। I want you to know this. पर मैं एक बात चाहता हूँ, When it comes to the blood of Jesus, पर जब यीशु की बात आती है, once my sins are washed away in the blood, एक बार जब हमारे पाप उसके रक्त में धुल गए, Father does not look at me in the circumstances that I was. मैं पिता फिर उन परिस्थितियों में मुझे नहीं देखता जिनमें मैं चल के आया हूँ, He looks me through the blood of Jesus वो उस Christ. रक्त के द्वारा मुझे देखता He है, looks me through the lenses of Christ. वो यीशु मसीह के द्वारा मुझे देखता है। When he sees me worthy to die for. जब वो मुझे देखता है, वो इस योग्य देखता है कि मैं उसके लिए My मेरा रक्त guilt बहा and my जाए। shame and my mistakes scream out to me saying, you are not good enough. मेरी गलतियां, मेरी पिछली जो ग्लानियां है मुझे बताती है मैं किसी योग्य नहीं। Maybe same thing is happening to you. संभवतः आपके साथ भी ऐसा Let होगा me हो। tell you one thing. पर एक बात मुझे बताने दीजिए, Let not your mistakes speak louder than the blood of Jesus this अपनी morning. गलतियों को उसके रक्त से ज्यादा बढ़ के बात मत करनी The blood दीजिए। of Jesus says, यीशु का रक्त कहता है, you are worthy. आप योग्य हैं, You are worthy. आप योग्य हैं, You are beloved. आप प्यारे हैं। You know, all throughout New Testament, any letter that apostles wrote, जितनी भी पत्रियां इसने नए नियम में लिखी गई हैं, when you open it, जब आप उनको खोलते in हैं, every book, सारी पत्रियों में the opening lines are like this. जो शुरुआती बातें लिखी गई हैं वो ऐसे हैं, Grace and peace from Father of God, Jesus and our Father. अनुग्रह और शांति परमेश्वर के द्वारा, यीशु के पिता के द्वारा तुम्हें मिलती रहे। Every letter says grace and peace. सारी पत्रियों में लिखा है अनुग्रह और शांति। Every letter says grace and peace. सारी पत्रियों में लिखा है अनुग्रह और शांति। Not a single letter says punishment from God. एक भी पत्री में यह नहीं लिखा कि आप पे दंड की Anger आज्ञा of है। God. Anger of परमेश्वर के God. क्रोध की बात है, It says peace. उसमें लिखा है शांति। Why? क्यों? Because now after the sacrifice of Christ, क्योंकि यीशु के बलिदान के बाद God looks at you differently. परमेश्वर आपको अलग नजरिए से देखते This हैं। morning I pray, आज की सुबह मेरी प्रार्थना may है, God help you and I परमेश्वर आपको और मेरी सहायता to करे, never identify with the old man. अपने पुराने जीवन से हम अपने को जोड़ के ना देखें। The man which is died and crucified on the वो cross. जो क्रूस पे यीशु के साथ मार दिया गया और गाड़ दिया गया, Let it not resurrect and speak to वो us. दोबारा जीवित होकर हमसे बात ना Now करे। no longer I live, but Christ lives in me.
that's what we need to अब live. मैं नहीं, मुझ में मसीह जीता है, हम ऐसा जी And पाए focus on Jesus Christ. और यीशु पे ध्यान रख सके। As you begin to focus on Jesus अब Christ, जब आप यीशु पे ध्यान रखते हैं, what you behold, you will become. आप जो देखेंगे आप ऐसा बन It's जाएंगे। interesting to know in the scriptures ये बहुत अच्छी बात है वचन में देखने that की। Lord is able to do extraordinary in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े अद्भुत कामों को करने में सक्षम He है। can take a sinner and turn it into saint. वो एक पापी को लेकर संत बना देता है। This morning I pray आज की सुबह मेरी प्रार्थना है that sin consciousness will be broken वो जो पाप का आभास है आपके जीवन में टूट जाए and son consciousness will reign. और आपके अंदर यीशु का आभास बने, That you will never forget ताकि आप कभी ना भूले you belong to Jesus. कि आप यीशु के हैं। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। Now in the Old Testament, पुराने नियम में God said, परमेश्वर ने कहा clean yourself and come to me. अपने आप को शुद्ध करो और मेरे पास आओ, He provided animal sacrifices. और उसके लिए उसने जानवरों की बलि की व्यवस्था दी। So every time a high priest would enter into the most holy place, he had to cleanse और himself. जब भी कोई महायाजक परम पवित्र स्थान में आता था उसे अपने आप को शुद्ध करना है। There was a process of consecration all throughout the एक scripture. शुद्धता की एक पूरी पद्धति है। Without consecration, they could not enter into the holy उस place. तरीके से शुद्ध होकर कोई परमेश्वर के समीप परम पवित्र स्थान में नहीं आ But in the सकता। new covenant, पर नई वाचा में oh, the blood of the bulls and the goats does not consecrate जो us. जो बैलों और मेमनों का रक्त है उससे हम शुद्ध नहीं होते। In the blood of Jesus, यीशु के रक्त के द्वारा 100% consecration हम happens. पूरी रीति से शुद्ध होते हैं। In the blood of Jesus, यीशु के रक्त के there is द्वारा a new way of worship. एक नया तरीका है आराधना का। There is a new way of entering into the most holy परमेश्वर के place. पवित्र स्थान में आने का एक नया तरीका The है। moment I am washed in the blood of Jesus, जब मैं उसके रक्त में धुल जाता हूँ, my conscience is washed. मेरी समझ, मेरा अंदर का कॉन्शियसनेस साफ हो My जाता है। feelings are no longer the same. मेरी भावनाएं बदल जाती हैं, My belief system is washed मेरे away. विश्वास करने का तरीका बदल And जाता I'm है, no longer the self person that I used to be. और मैं वो नहीं रहता जो मैं पहले था। So listen carefully. ध्यान से सुनिए। Every time हर बार we visit our past जब हम अपने पुराने अतीत को देखते हैं and identify it with it, और उससे अपने आप को जोड़ते हैं, we are actually looking to a lie. हम किसी ऐसे को देख रहे हैं जो झूठ है। You Amen. say, no, Pastor, I have done it. पर आप कहेंगे पाल साहब मैंने ऐसा किया है, I said, yes, but it's still a lie. वो अब भी झूठ है। Why? क्यों? Because what you have done it before the cross, the blood of Jesus has washed away. जो कुछ आपने किया है क्रूस के पहले वो रक्त उसके रक्त में धुल चुका है। What you did was your past. जो आपने किया वो आपका अतीत है। In the blood of Jesus, when you are washed, जब आप यीशु के रक्त में धुलते हैं, your present is not what it was. आपका वर्तमान वो नहीं है जो पहले था, Your present has become what Jesus is. फिर आपका वर्तमान वो है जो यीशु है। Now the problem with us अब is समस्या ये है, we still identify with our roots, हम आज भी अपनी जड़ों से अपने को जोड़ के देखते but हैं, our root has been changed. बट हमारी जड़ें बदल गई I हैं। am not from Adam. अब मैं आदम से नहीं I हूँ, am from Jesus. अब मैं यीशु से हूँ। I am from अब Jesus. मैं यीशु से हूँ, And because I belong to और Jesus, चूंकि मैं यीशु से हूँ, I am set free. मैं अब आजाद हूँ, I am holy. मैं पवित्र हूँ, I am washed in the blood of मैं Jesus. उसके रक्त से धो दिया I गया am हूँ, consecrated. अब मैं अलग किया गया And I हूँ am set apart. और मैं बिल्कुल अलग हूँ। You remember a few weeks we are studying on authority. हम कुछ सप्ताह से लगातार अधिकार के विषय में पढ़ रहे Listen, my हैं। friends, we have been looking into the word of God concerning how does the authority flows. हम देख रहे हैं अधिकार कैसे काम करता है। We saw there is authority in the name of Jesus. हमने देखा यीशु के नाम में अधिकार है, Then we saw there is authority in the fruit and the holy and the gifts of Holy हमने Spirit. देखा आत्मा के फलों में उसके वरदानों में अधिकार है, Then we have seen that there is authority when I walk in faith and in और obedience. जब मैं विश्वास में और आज्ञाकारिता में चलता हूँ उसमें अधिकार है। Today I want to talk to you about आज जो मैं आपसे बात करना there is चाहता an हूँ, authority when you live a consecrated life. जब आप एक शुद्ध अलग किया हुआ जीवन जीते हैं उसमें भी अधिकार है। There is an authority that you move in when you live a pure and holy life. जब आप एक शुद्ध और पवित्र जीवन जीते हैं उसमें अधिकार होता है। So there is an authority in consecrated lifestyle and the anointing. जो अलग किया हुआ जीवन है, शुद्ध किया हुआ जीवन में उसमें एक अभिषेक है। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए, There is something unusual. एक अलग सी बात है। In the Old Testament, पुराने नियम में they would have to be consecrated first and then anointed. उन्हें पहले शुद्ध होना होता था तब उनका अभिषेक होता था, In the New Testament, पर नए नियम में they are anointed and then consecrated. वो पहले अभिषेक किए जाते हैं फिर उनको और It's शुद्ध होते हैं। amazing. अलग है ये। There they were anointing by oil. वो पुराने नियम में तेल से शुद्ध But होते थे, something happened in New Testament. पर नए नियम में God set us apart by the blood of Christ. परमेश्वर हमें यीशु के रक्त के द्वारा अलग करता है। Now let's look at few scripture verses. देखिए कुछ पदों को देखेंगे, It's beautiful to see what the Bible says. बहुत अद्भुत है जो वचन में लिखा है। The first thing that Bible says about Acts chapter 10 verse 38, वही तो काम उसका 10वां अध्याय उसके 38वें पद में Bible is talking about Jesus Christ. वचन वहां यीशु के विषय में कह The रहा है। Bible says that God anointed Jesus of Nazareth. वहां लिखा है कि
परमेश्वर ने ये नासरत के यीशु का अभिषेक किया and he went about doing good, और वो भलाई करता फिरा healing all kinds of disease, और हर प्रकार की बीमारी चंगा की, casting demons, शैतान के सताए हुए लोगों को छुटकारा meeting दिया, the needs of people. लोगों की बंधुआई छुटकाई। The Bible says वचन कहता है God anointed Jesus of Nazareth. परमेश्वर ने यीशु नासी को अभिषेक किया। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए, When God anointed Jesus, जब परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक he किया, went about doing good. वो उसने जाके भलाई की। So tell me one thing. एक बात बताइए, Was doing good became the result of anointing, or was anointing the result of doing अब good? मुझे बताइए भलाई करना अभिषेक की वजह से हो रहा है या अभिषेक की वजह से भलाई हो रही है? The Bible says वचन कहता है God anointed Jesus. परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया Then he went about doing और good. फिर उसने जाकर भलाई की। In the Old Testament, पुराने नियम में you do good, then I anoint you. आप पहले अच्छा करते थे फिर आपका अभिषेक होता था। In the New Testament, नए नियम में God anointed Jesus. परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया Then he went about doing और good. फिर उसने जाकर भलाई की। Are you beginning to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? In the Old Testament, पुराने नियम में achievement first, पहले आप चीजों को प्राप्त करते हैं, acceptance later. उसको बाद में स्वीकार किया जाता है। In the New Testament, पर नए नियम में acceptance पहले first, स्वीकार किया जाता है achievement और next. फिर आप उपलब्धि प्राप्त Under करते the हैं। Old Covenant, पुराने नियम के अनुसार if you do good, अगर आप अच्छा करेंगे you are received. आपको स्वीकार किया In जाएगा। the New पर Testament, नए नियम में you are received. आपको पहले स्वीकार And किया जाता because है। you are received, now do good. क्योंकि आप स्वीकार कर लिए गए हैं इसलिए आप भलाई कीजिए। Hello. हेलो, Are you able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? In this covenant, इस वाचा में we the church belong to the new covenant. हम कलीसिया नई वाचा के We are the भागीदार हैं। church, the body of Christ of the new covenant. हम परमेश्वर यीशु की देह नई वाचा के The हैं। Bible says we are the body. हम वचन कहते हैं हम देह हैं, Jesus is the head. वो मसीह सर है Now our head is anointed और जो हमारा सर है उसमें अभिषेक हुआ to है do good. ताकि वो भला कर सके। Turn to your neighbor and say, you are anointed to do अपने good. पड़ोसी को मुड़ के कहिए आप भले कामों के लिए अभिषेक किए गए हैं। You are anointed to do good. आपका अभिषेक हुआ है भले कामों के लिए। God has anointed you. परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। Now let me tell you, what does anointing means? अब मुझे बताइए अभिषेक करने का मतलब क्या है? It's pretty simple. बहुत साधारण है। Anointing means you are set apart for something special. अभिषेक का मतलब है आपको किसी कार्य के लिए अलग किया गया है। Anointing means अभिषेक का मतलब you है are no longer ordinary. अब आप साधारण नहीं हैं। Anointing means अभिषेक का मतलब है you are set apart to do greater things. आपको अलग किया गया है बड़े कार्यों के लिए। Anointing means अभिषेक का मतलब है you are set apart for the use of God. आप परमेश्वर के लिए उपयोग के लिए अलग किए गए हैं। Listen carefully, my ध्यान से friend. सुनिए। When a person is anointed, जब एक व्यक्ति का अभिषेक होता है he operates in authority. वो अधिकार में चलता है। You cannot operate in authority without anointing. आप अभिषेक के बिना अधिकार में नहीं चल सकते। Jesus got anointed यीशु का अभिषेक हुआ and then he went about doing good, और फिर उसने भलाई की and his authority was over all sickness. और सारी बीमारियों पे उसका अधिकार His था। authority operated over everything. सब चीजों पे उसका अधिकार था Why? Because God anointed him. क्योंकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। That tells me one thing. मुझे एक बात ये बताती If है you become anointed, अगर आप अभिषिक्त हो जाएं you become the ruling party. फिर आप रूलिंग शासन करने वाले लोग होंगे। You are the one who decides what needs to फिर happen. आप इस बात का निर्णय करेंगे क्या होगा। You are the one who changes things. फिर आप है जो चीजों को बदलते हैं। Why? Because anointing is an ability to do what God wants you to do. क्योंकि जो अभिषेक है वो कार्य करने की क्षमता है जिसके द्वारा परमेश्वर का कार्य Listen होता है। carefully. ध्यान से सुनिए। Anointing अभिषेक is an empowerment given to you एक सामर्थ्य जो आपको दी गई है by the Spirit of the living God परमेश्वर की जीवित आत्मा के द्वारा to accomplish everything ताकि आप वो सब कुछ कर सके that is the heart of the Father God to do through you. जो पिता की इच्छा है आपके द्वारा करने की। Everything that Father wants you to do सारी बातें जो परमेश्वर चाहते हैं आप करें becomes possible वो संभव होता है when you receive the anointing. जब आप अभिषेक प्राप्त करते My हैं। Bible tells me, मेरा वचन मुझे बताता है when I read 1 Samuel chapter 16 verse 13 जब मैं पहला शमूएल पढ़ता हूँ उसका 16वां अध्याय and verse number 13, उसके 13वें पद से पढ़ता हूँ। it's the story of a shepherd boy. यहाँ पे एक चरवाहे लड़के की बात है। The Bible says वचन बताता है an ordinary young man, एक साधारण सा यंग बच्चा है, nothing special, उसमें कुछ भी खास नहीं, musician, वो बजाता है, was one who knows how to throw the slingshots, उसे गोफन चलाना आता है, person who is a shepherd boy. वो एक चरवाहा लड़का है Something happens in his life. और उसके जीवन में कुछ होता है। 1 Samuel 16:13. उसके 13वें पद में लिखा है तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा।
Hallelujah. हालेलुया। When Samuel anointed him, जब शमूएल ने उसका अभिषेक किया, something happened. कुछ हुआ है। From that day onwards, उस दिन पश्चात से Holy Spirit came with power upon David. परमेश्वर का आत्मा सामर्थ से उसको उतरता My है। brother, I want you to know, मेरे भाइयों, मैं चाहता हूँ इस बात the को जानो। day God anoints you, जिस दिन परमेश्वर आपका अभिषेक करता है, Holy Spirit lands on you. परमेश्वर का आत्मा आप पे उतरता है। Listen, my friend, सुनिए मेरे दोस्तों, among his brothers, उनके भाइयों के मध्य में वचन कहता one है, thing that set David apart एक बात जिसने दाऊद को अलग कर दिया, was Holy Spirit. वह है पवित्र आत्मा। Amen। One thing that set him apart from nation एक बात जिसने उसे पूरे राष्ट्र से अलग कर दिया, was Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा। What caused Holy Spirit to come upon him? क्या कारण था कि पवित्र आत्मा उस पर उतरा? The anointing. वो अभिषेक, He was set apart वो अलग किया गया for the master's use. परमेश्वर के काम के लिए। My prayer is that Upper Room Church will be set apart for the master's मेरी use. प्रार्थना है कि पूर्ण कलीसिया परमेश्वर के कार्य के लिए अलग की May जाए। this be the morning where Holy Spirit comes upon आज us की with सुबह वो power. सुबह हो जब पवित्र आत्मा आप पे उतरता है। Like Holy Spirit came from that day onwards. उस दिन पश्चात जब पवित्र आत्मा उसे उतरता The रहा, Bible says that from that day onwards, उस दिन के बाद से when Samuel put oil on him, from that day शमूएल ने onwards, जिस दिन उसका अभिषेक किया, तेल डाला, उस from दिन that से, day onwards, उस दिन के बाद से, the day God anointed David, from that day जिस दिन onwards, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, उस दिन से his bank balance did not become full, उसका जो बैंक बैलेंस वो पूरा नहीं हुआ, his color did not change, उसके रंग, चमड़े का रंग बदला his नहीं, height did not change, उसका हाइट नहीं बदला, his house did not change, उसका घर नहीं बदला, his sheep did not उसकी change, भेड़ें नहीं बदली, his circumstances did not उसकी change. परिस्थितियां नहीं बदली। One thing happened. एक चीज हुई, The Spirit of the living God came upon him. जीवित परमेश्वर की आत्मा उस पर उतर गई। The Bible says वचन में लिखा है, the Spirit of the living God kept coming upon him. परमेश्वर का आत्मा उस दिन के बाद उस पर उतरता रहा। Do you know what is anointing? आपको पता है अभिषेक क्या है? It is a magnet that attracts the presence of God upon वो your एक life. ऐसा चुंबक है जो परमेश्वर की उपस्थिति को खींचता है। I pray in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से प्रार्थना This करता हूँ, morning, आज की may the सुबह hand of God come upon every परमेश्वर child. का हाथ आप में से हर एक पे उतरने As वाला हो। as prophet Samuel prophesied an anointing, जिस तरह परमेश्वर के दास ने, भविष्यवक्ता ने, शमूएल ने उस पर प्रार्थना की, उस पर भविष्यवाणी I की। pray in the name of Jesus right now. मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता Holy हूँ, Spirit, परमेश्वर का आत्मा, you are the one who is the anointer. आप हैं जो अभिषेक करते हैं, You are the one who comes upon your आप हैं children. जो उतरते हैं बच्चों पे। This morning in the name of आज Jesus, यीशु के नाम से come upon everyone. इनमें से हर एक पे उतर Fill जाए। your church with your अपनी glory. कलीसिया को भर दीजिए, Fill your church with Holy अपने Spirit. कलीसिया को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, Like you came upon David. जैसे आप दाऊद पे उतरे, Like you came upon Jesus. जैसे आप यीशु पे उतरे, Like you came upon your servants. जैसे आप अपने दासों पे उतरते आए। This morning, come upon your आज children. की I सुबह अपनी pray. कलीसिया पे उतर Come, आइए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा take your place. अपनी जगह लीजिए, In Jesus' mighty name. यीशु के नाम से। Amen. 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 Hallelujah, Lord. We welcome you, Father. आपका स्वागत है पिता। You know, when you study the scripture about consecrated जब lifestyle, आप एक अलग किया हुआ जीवन परिता परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, because Samuel anointed David, चूंकि पर शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, from that moment, उस दिन से David's life was marked for glory of उसका God. जीवन महिमा के लिए अलग हो Now, गया। that does not mean that David would never make a mistake. इसका मतलब ये नहीं कि दाऊद गलती नहीं करेगा। Many people think बहुत से लोग सोचते हैं once you're anointed, जब आपका अभिषेक होता you है will never do any mistake. आप कुछ गलती नहीं करेंगे। No, my friend, मेरे मित्रों, मुझे बता दीजिए, David was anointed. दाऊद का अभिषेक हुआ था After that, he committed sins, और उसके बाद भी उसने पाप किया, adultery, उसने व्यभिचार किया, murder, उसने मर्डर किया, horrible things. गलत चीजें, बहुत You घृणित say, oh चीजें। my goodness, what the point of anointing? फिर इसका मतलब अभिषेक का फायदा क्या? Listen, my friend, सुनिए मेरे मित्रों, anointing is an ability to do what God called you to do. जो अभिषेक है वो परमेश्वर की इच्छा की, उसकी पूरी करने की सामर्थ है, But surrender is an ability to live the way God wants you to live. पर जो समर्पण है वो एक इच्छा है जो आप परमेश्वर के जीवन के लिए करना The चाहते हैं। problem with us is हमारे साथ जो समस्या है, we love anointing हम अभिषेक को प्रेम करते because when हैं, anointing comes, क्योंकि जब अभिषेक आता है you can kill a bear,
आप एक भालू को मार सकते You हैं, can kill a lion. आप एक शेर को मार सकते You हैं, can kill Goliath. आप गोलायत को मार You सकते can हैं, win every battle. आप हर युद्ध जीत सकते When हैं। anointing comes, जब अभिषेक आता है, every enemy can be defeated. सारे शत्रुओं का नाश हो सकता है। Listen, my friend. सुनिए मेरे दोस्तों, But when surrender comes, पर जब समर्पण आता when है, Holy Spirit allows you to surrender to the will of जब Father, परमेश्वर का आत्मा आपको समर्पण के लिए प्रेरित करता है, then that anointing फिर वो जो अभिषेक है, that can cause you to walk in glory आप उसको महिमा में, आपको महिमा में चलने योग्य बनाता है। will also help you to pick up your cross. फिर आपको इस योग्य भी बनाएगा कि आप अपना क्रूस ले सकें। That anointing will help you वो अभिषेक आपकी मदद करेगा to live holy. कि आप एक पवित्र जीवन जी सके। That concept, that anointing, when it is clubbed with surrender to the will of वो जो God, अभिषेक जब समर्पण के साथ मिलता है, everything changes. सब कुछ बदलता It है। becomes a game changer. वो एक गेम बदलने वाला कारण बनता है। Now listen, I will tell you something. मैं आपको एक बात बताता हूँ, Why surrender and anointing should go together. क्यों समर्पण और अभिषेक साथ साथ होना चाहिए। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए, Anointing will take you high. जो अभिषेक है वो आपको ऊंचे पे ले जाएगा Surrender will keep you high. और समर्पण आपको वहां बनाए रखेगा। हालेलुया। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? Anointing will take you to the highest level. जो अभिषेक है वो आपको सबसे ऊंचे स्तर तक ले जा सकता But है, your surrender to Jesus Christ, पर जो आपका समर्पण यीशु के प्रति है, your surrender to His will, आपका जो समर्पण उसकी इच्छा के प्रति your है, surrender to His character आपके उसके स्वभाव के प्रति जो आपका समर्पण है, will keep you on that high. वो आपको वहां उस स्तर पे बनाए रखेगा। Listen, my friend, सुनिए मेरे दोस्त, there are many mighty people in the Word of God परमेश्वर के वचन में बहुत से सामर्थी लोग who were हैं anointed. जो अभिषेक थे। One of the guys' name is Samson, उनमें से एक का नाम सैमसन है, heavily anointed in his days. बहुत भारी तरीके से अभिषेक हुआ One है। man who can destroy a nation. वो व्यक्ति जो पूरे राष्ट्र को खत्म कर He सकता has है, an anointing to destroy nations. उसके पास वो अभिषेक है जिससे वो राष्ट्रों को नष्ट कर सकता है। Nobody in enemy is powerful as Samson. कोई उसका विरोधी ऐसा नहीं जो उसके बराबर सामर्थी हो। He alone was enough for the army. वो अकेला काफी है पूरी सेना के One लिए। man is enough for the nation. वो एक व्यक्ति पूरे विरोधी राष्ट्र के लिए काफी है। One area पर एक जीवन का क्षेत्र है where he lives in compromise. जहां उसने कॉम्प्रोमाइज किया है, And that compromise और वो कॉम्प्रोमाइज करना destroys things for his life. उसके जीवन के लिए चीजों को नष्ट कर देता He है। is not able to operate in his anointing because he's living in compromised life. वो अपने जीवन के अभिषेक में नहीं चल पा रहा क्योंकि उसके जीवन में समर्पण नहीं है। You all know that compromise will always rob you from what you can do. जो आपका कॉम्प्रोमाइज करना है वो आपको उस क्षमता से अलग कर देता है जो आप कर सकते Let's हैं। read one verse in the Bible. एक वचन पढ़ते हैं, Ecclesiastes chapter 10 verse number 1. समुपदेशक उसका 10वां अध्याय उसका पहला पद। See what this Bible says. देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। Ecclesiastes chapter 10 verse number 1. समुपदेशक 10 उसके पहले पद में लिखा है, The Bible says that the dead flies will destroy the oil of anointing. यहाँ ऐसा लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। What does Bible say? देखिए वचन में क्या लिखा A है, perfumed oil can be destroyed by a dead fly. जो सुगंध वाला तेल है वो मरी हुई मक्खियों से नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। What is God saying? परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? Listen, your anointing जो आपका अभिषेक है and your purity और जो आपकी शुद्धता है should go together. वो साथ साथ चलनी चाहिए। Elsewise, अन्यथा even though you are anointed, आप अभिषिक्त तो होंगे you will not be effective. पर आप प्रभावी नहीं होंगे। The reason is इसका कारण ये है your lifestyle is contradictory to the anointing. क्योंकि आपका जो जीवन जीने का तरीका है वो विरोधाभास है आपके अभिषेक से। My friend, I want you to know, मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं इस बात को जाने। it's a great thing to hear the testimony of Angad. बहुत बड़ी बात है कि आप अंगद की गवाही को सुनते Thank you, हैं। Angad, for sharing that testimony. थैंक यू अंगद, आपने उस गवाही को जो बांटा। It's not only you, even I go through the same moments. ना सिर्फ आप बट मैं भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरता हूँ And I ask the help of Lord. और मैं परमेश्वर की मदद मांगता हूँ। Every time I called on the Lord, Lord rescued me. और जब भी मैं उसको पुकारता हूँ मेरी सहायता करता है। Temptation will always be there, परीक्षाएं हमेशा होंगी but God will make a way of escape. पर परमेश्वर निकलने का रास्ता बनाते If you हैं। look to Jesus, अगर आप यीशु को you देखेंगे will not only be free, ना सिर्फ आप स्वतंत्र होंगे but God will anoint you to loose the bonds of those who are addicted to the same problem. पर परमेश्वर आपको इस योग्य बनाएंगे अभिषेक के द्वारा कि आप दूसरों को भी उस बंधुआई से छुड़ा I सकें। pray in the name of Jesus मैं यीशु के नाम से that प्रार्थना upper करता हूँ room church men and women कि अपर रूम कलीसिया के जो पुरुष और स्त्रियां हैं will not only live a set apart holy life, ना सिर्फ एक अलग किया हुआ पवित्र जीवन जिएंगे but they will be so heavily anointed पर वो इतने
भारी तरीके से अभिषेक that God होंगे will use them to release other people who are in bondage of the same कि problem. परमेश्वर उनका इस्तेमाल करेंगे बंधुआइयों को छुटकारा देने के लिए। Bible declares वचन में लिखा है when David got anointed, जब दाऊद का अभिषेक हुआ oh, something changed in his कुछ life. उसके जीवन में बदल गया, Holy Spirit started coming. परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा। When Samson got anointed, जब शिमशोन पे परमेश्वर का अभिषेक उतरा, Holy Spirit started coming upon him. उसमें परमेश्वर का आत्मा उतरा। Everybody who was anointed in the Old Testament, जितने लोगों का पुराने नियम में अभिषेक हुआ, Holy Spirit started coming upon उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरने लगा। But listen, सुनिए, Holy Spirit would come upon them, He would come in them. पर परमेश्वर का आत्मा उन पे उतरता था, उनके अंदर नहीं आता था। Under the new covenant, पर नई वाचा में something different. कुछ अलग हुआ है। He comes in us and then He comes upon us. वो पहले हमारे अंदर आता है, फिर हमारे ऊपर आता है। First, Holy Spirit would just come, anoint them, and use them, and then go back. पहले पवित्र परमेश्वर का आत्मा उतरता था, उनका उपयोग करता था और चला जाता था। But now, पर अब He stays in us. वो हमारे अंदर रहता है। That tells me one thing. मुझे एक वही बात When बताती Holy है, Spirit lives in me, जब परमेश्वर का आत्मा मुझ में He रहता है, not only gives me ability to do good, फिर ना मुझे वो क्षमता देता है भला करने का, He makes me good. वो मुझे भी शुद्ध और भला करता है। Hallelujah. आमीन। He changes me. वो मुझे बदलता है। I live differently. मैं अलग तरीके से जीता I हूँ, think differently. मैं अलग तरीके से I सोचता हूँ, speak differently. मैं अलग तरीके से बोलता I हूँ, live differently. मैं अलग तरीके से जी Why? सकता Because हूँ, Holy Spirit is in me. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। Now, if you remember that Holy One is in you, जब आपको स्मरण है कि वो पवित्र आप में है, surrender to Him. उसको समर्पित कीजिए, Surrender to Him. उसके सामने समर्पित हो जाइए, Surrender to Him. उसके सामने समर्पित हो The जाइए। more you surrender to Him, जितना ज्यादा आप समर्पित the होंगे, more consecrated your life will be. उतना अलग और शुद्ध जीवन आपका होगा, The more pure your thoughts will be. उतने शुद्ध पवित्र आपके विचार The होंगे, more holy your walk will be. उतना पवित्र आपका चाल चलन होगा। You know, anointed people can have a messed up life. जो पवित्र, जो अलग किए गए लोग हैं, जो अभिषेक के लोग हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। Only reason is उसका कारण ये है they don't submit. क्योंकि वो समर्पण नहीं करते, Therefore, surrender is important. इसलिए समर्पण बहुत जरूरी है। Don't become like Samson. शमशेन के समान मत बनिए। Amazing, अद्भुत व्यक्ति है वो, yet inside weak. पर वो अंदर से कमजोर है। Don't be like Saul. आप शाऊल के समान मत बनिए, He became anointed, उसका अभिषेक हुआ, became king, वो राजा बना, never lost a battle. कभी कोई युद्ध नहीं हारा, But the last battle of his life, he lost, he died. और पर अपने जीवन के अंतिम युद्ध में वो हार भी गया और मर भी The गया। reason उसका कारण ये है, was anointed, उसका वो अभिषेक था, but was not surrendered. पर उसका जीवन में समर्पण नहीं था। We are called to live a surrendered life. हम बुलाए गए हैं समर्पित जीवन के लिए। Listen, my friend, दोस्तों सुनिए इस बात को। Jesus was anointed यीशु का अभिषेक हुआ and surrendered. और उसने समर्पित जीवन जिया। He said, not my will, yours be done. उसने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। That's the combination. ये एक कॉम्बिनेशन चाहिए Surrender and anointing. कि समर्पण और अभिषेक साथ साथ। Surrender from my side, empowerment from God's side. मेरे द्वारा समर्पण और परमेश्वर के द्वारा अभिषेक, Once combined together, जब ये दोनों मिल जाते हैं, you become unstoppable. आपको रोकना संभव नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। See, David got anointed. अब दाऊद का अभिषेक हुआ, Jesus got anointed. यीशु का अभिषेक You हुआ, will say, Pastor Saab, I am not anointed. पर आप कहेंगे मेरा अभिषेक नहीं हुआ। I said, who told you? मैं कहूंगा आपको ये बात किसने कही? हुआ I है said, do you believe in Jesus? क्या आप यीशु पे विश्वास करते Are you हैं? a born again child of क्या God? आपने नया जन्म लिया विश्वासी If हैं? you are born again child of God, आप अगर नए सिरे से जन्म लिए हुए विश्वासी हैं, something has happened. कुछ हुआ है। Let me show you. आपको दिखाता हूं मैं। Open your Bibles. अपने वचन खोलिए। Hebrews chapter 1 verse number 9. इब्रानियों उसका पहला अध्याय उसका 9वां पद। Look at what Bible says. देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। See, one thing amazing happens. कुछ अद्भुत हुआ है यहाँ पर, He says, because you have loved righteousness, क्योंकि तूने धर्म से प्रेम रखा है, because you have loved to walk in the ways of God, क्योंकि तूने परमेश्वर के रास्तों में चलने का निर्णय किया है, honor God, परमेश्वर की आदर की है, God has anointed you above your pals. परमेश्वर ने आपके साथियों से बढ़कर आपका अभिषेक किया है। Now this is something ये एक बात है, that was spoken concerning Jesus Christ. ये बात यीशु के संदर्भ में कही गई है। And listen,
और सुनिए, The writer of Hebrew is talking about a prophecy concerning Jesus Christ. और जो हिब्रू को लिखने वाला है, इब्रानियों को लिखने वाला है, वो यीशु के विषय में एक बात कह रहा He's है, talking that because you loved righteousness, क्योंकि तूने धर्म से प्रेम रखा, God anointed you more than everyone else. परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर तेरा अभिषेक But किया। listen what 2 Corinthians chapter 1 verse But number 21 says. और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। What does Bible says? देखिए वचन में क्या लिखा है, The Bible says वचन में लिखा है, that in Christ यीशु मसीह में He makes me strong. वो हमें दृढ़ करता है। What does it say? क्या लिखा है, My foundation is Jesus Christ. हमारी नींव यीशु है, And the Bible is saying, और वचन बताता है in Christ, यीशु मसीह में God has anointed you. परमेश्वर ने आपको और मेरा अभिषेक किया है। Isn't it saying that? क्या आपके वचन में ऐसा लिखा है? What is your Bible saying? देखिए आपके वचन में क्या लिखा है, Read with me पहला 2 अध्याय, Corinthians chapter 1 verse 21. और वहां 21वें पद में लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। What is Bible saying? देखिए वचन में क्या लिखा है, We are grafted in Christ Jesus. हम यीशु मसीह में जोड़ दिए गए हैं, And then he says, God anointed us. और फिर वचन कहता है परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। We are connected in the anointing of Christ. हम यीशु के अभिषेक में जोड़ दिए गए हैं। The anointing that Jesus carries वो अभिषेक जो यीशु पे था, is not more than what the anointing church carries. अब वो बढ़कर नहीं है जो आज कलीसिया के पास है। Same anointing. वही अभिषेक, God anointed Jesus Christ परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया and then plugged me into Jesus और Christ. मुझे फिर यीशु में जोड़ दिया है। Listen, सुनिए, God gave anointing to Jesus परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया without measure बिना किसी नाप तौल के, and then plugged me in Christ. और मुझे यीशु में फिर जोड़ दिया। Now what happens? अब देखिए क्या हुआ, Because I am rooted in Christ, क्योंकि मैं यीशु में जड़ित हूँ, something happens. कुछ हुआ है। Everything that belongs to Him, I become co-heir with Him. जो कुछ उसके पास था मैं उसके साथ सहभागी हो गया। So the anointing of Christ अब जो यीशु का अभिषेक है did not go to heaven with Him. वो उसके साथ स्वर्ग नहीं गया। The anointing of Christ अब जो यीशु का अभिषेक है is upon the church today, वो आज कलीसिया के ऊपर है, on the earth. इस पृथ्वी पर है। That's why you hear testimonies of healing. इसलिए आप चंगाइयों की गवाही सुनते That's why हैं, you see dead bodies are raised even इसलिए आप today. मुर्दों को जी उठना सुनते हैं, That's why you see miracles are happening इसलिए even आप देखते today. हैं चमत्कार हो रहे हैं। Why? क्यों? Because anointing did not go. क्योंकि अभिषेक वापस नहीं गया, Anointing stays in you. वो अभिषेक अब आप पर ठहर You गया are the है। body of Christ. आप यीशु की देह You are हैं, rooted in आप Christ. यीशु में जड़ित हैं, And the Bible says that God anointed us. और वचन कहता है परमेश्वर ने हमारा अभिषेक In किया है। Acts 10 we see God anointed Jesus. और हमने 10वें अध्याय में पितरों के काम के देखा कि परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया, And when God anointed Jesus, और जब परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक He किया went about doing good. वो जाकर भलाई करता रहा। Now that anointing came upon the church. अब वही अनॉइंटिंग, वही अभिषेक अब कलीसिया पर So है। what should church be doing? अब कलीसिया को क्या करना चाहिए? Exactly the same thing Jesus was doing. वो जो यीशु कर रहे थे Same thing is possible through you and I. वही आपके द्वारा भी संभव है। Listen, my friend. दोस्तों सुनिए मेरी बात। You would say, Pastor, I don't know about that. आप कहेंगे पास्टर साहब मुझे इस विषय में कुछ पता नहीं। Yes, Bible says that I'm anointed, हाँ वचन में लिखा तो है कि मेरा but I अभिषेक है, don't feel like that. पर मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। I don't know, Pastor. मुझे नहीं पता I am a पास्टर, sinner. मैं एक पापी हूँ, I have done this. मैंने ये किया है, I've done that. मैंने वो किया है। Listen, this सुनिए। thought pattern ये जो सोचने की प्रक्रिया है comes from our mistakes. ये हमारी गलतियों से आती है, And devil speaks louder. और शैतान बढ़ चढ़ कर बोलता He है। is an accuser of the वो brethren. भाइयों पे दोष लगाने वाला है, That's all he does. वो यही कर सकता If है। he opens his mouth, वो जब भी मुंह खोलता है he's going to speak lies वो झूठ बोलेगा, because he's the father of all क्योंकि lies. वो झूठों का पिता है, And he will accuse you of wrong that you have done. और आपको उन बातों से दोष लगाएगा जो आपने Listen, किया what है। happens then? फिर क्या होता है? We start believing what devil is saying. फिर हम उन बातों पे विश्वास करते हैं जो शैतान कहने लगता And है। then we sit down thinking, I'm not good enough. फिर हम बैठ जाते हैं कि मैं किसी काम का नहीं। What happens if a horse thinks he is a goat? और क्या होगा अगर एक घोड़ा सोचे कि वो बकरी है, It will behave like a goat. क्योंकि वो फिर बकरी के समान स्वभाव हो What जाएगा। happens if an eagle thinks it is a hen? फिर अगर क्या होगा अगर एक चील सोचे कि वो एक मुर्गी है, It will behave like it. वो मुर्गी के समान बिहेव करेगी। What happens if a lion thinks he is a fox? फिर अगर एक शेर सोचे कि वो एक लोमड़ी है, How will that lion live? फिर वो शेर कैसा जीवन He जिएगा? will live like that fox. वो उस
लोमड़ी के समान जीने Why? लगे, Because that's what he's thinking. क्योंकि वो यही सोच रहा है। Listen, my friend, सुनो मेरे दोस्तों, let not your mistake attach to you so strongly that they become your identity. फिर अपनी गलतियों को अपने पर इस तरह आक्रमण मत करने दीजिए कि वो आपकी पहचान बन जाए। Let not your mistakes tell you who you are. अपनी गलतियों को मत बताने दीजिए कि आप कौन हैं। What I did and who I am are two different जो मैंने things. किया और जो मैं हूँ, ये दो अलग अलग चीजें हैं। The prodigal son did everything nonsense. जो वो उड़ाऊ पुत्र है, उसने सब कुछ गलत किया, But just because he did everything nonsense, पर चूंकि उसने सब कुछ गलत किया, he never lost sonship. उसने कभी वो पुत्र होने का अधिकार गवाया नहीं। He was Ajma's son when he was in palace and Ajma's son when he was with pigs. वो उतना ही बेटा था जब वो घर में था, और वो उतना ही बेटा था जब वो सुअरों के साथ था। Nothing changed in father's mind, पिता के मन में कुछ भी नहीं बदला, but everything changed in that son's mind. पर उस बेटे के मन में सब कुछ बदल गया। He thought, I'm not good enough to be son, let me be a servant. उसने कहा, मैं योग्य नहीं कि मैं पुत्र कहलाऊं, अब अच्छा है कि मैं एक मजदूर बन जाऊं। Compromise life does not change the love of God for you, but it changed your mind for God. पर आपका जो कॉम्प्रोमाइज जीवन है, वो परमेश्वर का मन नहीं बदलता, पर आपका मन परमेश्वर की ओर से बदल देता है। That's why God does not like sin. इसलिए परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करते, Because sin has the ability to blind you for who you are and who God is. क्योंकि पाप के पास ये क्षमता है कि वो आपको अंधा कर सके और देख ना सके कि आप में परमेश्वर कौन So है। even though you are someone amazing, आप हो सकते हैं बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, even though you are आप supernatural, एक अलौकिक व्यक्ति हैं, you can't see that. पर आप वो देख नहीं पाएंगे, Because you're only focused on seeing your mistake. क्योंकि आप अपनी गलतियों को देखते हैं। No, my friend, मेरे दोस्तों, you are a child of the living God. आप जीवित परमेश्वर की संतान The हैं। Bible says God anointed Jesus, वचन कहता है परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक किया, and that God anointed you. और वही परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। Same spirit that came upon Jesus वो आत्मा जो यीशु पे उतरी, has come upon you. वो आप पर भी उतरी है, There is no difference. कुछ भी बदला नहीं है। And that's why Hebrew chapter 1 verse 9 is very important. इसलिए इब्रानियों का पहला अध्याय उसका 9वां पद बहुत Let's जरूरी है। reread that scripture passage. फिर एक Hebrews उस पद chapter को 1 verse पढ़ेंगे। 9. तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, Listen, you have loved righteousness and hated evil. तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। तूने धार्मिकता से प्रेम रखा should be the translation. Okay, what does Bible say? देखिए वचन में क्या लिखा It है, says you loved righteousness तूने धार्मिकता से प्रेम रखा and hated evil. और अधर्म से बैर रखा है। That's why God anointed you so heavily. इसलिए परमेश्वर ने तेरा एक भारी अभिषेक किया है। Now listen carefully. सुनिए ध्यान से, Jesus was the transition between Old Testament and New Testament. जो यीशु है वो पुराने नियम और नए नियम के बीच का बदलाव है। In Old Testament you have to be qualified, then you are anointed. पुराने नियम में आपको पहले अच्छा करना होता था, तब आप स्वीकार्य होते In थे, New Testament, पर नए नियम में first you receive the Holy Spirit, then you do good things. आप पहले पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, फिर जाके आप अच्छा करते हैं। That's what Bible says. ये वचन में लिखा And है। I want you to understand something मैं here. चाहता हूँ आप यहाँ एक बात In समझें। Hebrews chapter 1 verse 9, इब्रानियों पहला अध्याय 9वें पद में लिखा है, you have loved righteousness. तूने धार्मिकता से प्रेम रखा है। Who is righteousness? कौन है धार्मिकता? 1 Corinthians chapter 1 verse 30, जो पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 13वां पद कहता है, 30. उसका 30वां पद कहता है, Jesus Christ is our righteousness. यीशु हमारी धार्मिकता है। The Bible says वचन कहता है, Jesus Christ is our righteousness. यीशु हमारी धार्मिकता And है। if I love Jesus, और अगर मैं यीशु से प्रेम करता if हूँ, I obey his instruction, अगर मैं उसकी आज्ञाओं को मानता I हूँ, can walk in the anointing God has for me. फिर मैं उस अभिषेक में चल पाता हूँ जो परमेश्वर के लिए मेरे पास It's amazing to see that God wants us to live glorious life. ये अद्भुत है कि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं एक महिमान्वित जीवन जिए। Let's read Leviticus 8 verse 11 and 12. लेवी व्यवस्था उसका 8वां अध्याय उसके 11वें 12वें पद में लिखा है, और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। The Bible says वचन कहता है, even the sacrificial places like the altar in the tabernacle of the Lord, वो जो वेदी जो पवित्र स्थान में थी उस पे भी Moses had to sprinkle oil and anoint it before it is used. मूसा को उसका भी अभिषेक करना था इसके पहले कि उसका उपयोग हो। Next verse, read verse number 12वां 12. पद कहता है, और उसने अभिषेक का तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र The किया। Bible says वचन कहता है, when Moses put the oil of anointing on the altar became holy. जब मूसा ने वो तेल लेकर जब उस वेदी पे डाला वो पवित्र हो गया। Now when that he took the same oil and put it on Aaron became holy. और वही जब तेल लेकर उसने हारून पे डाला वो पवित्र हो गया। Listen carefully. ध्यान से सुनिए What does it says? क्या लिखा है। It says the moment anointing happened, they were set apart for God's use. जैसे ही अभिषेक किया गया वो परमेश्वर के लिए अलग पवित्र हो गए।
Do you understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? You were set apart. आप अलग किए गए हैं. Now you can walk in the authority God has placed you. अब आप उस अधिकार में चल सकते हैं जो परमेश्वर ने. Aaron, you can have the authority of a high priest because you're anointed. आरून, अब तू एक महायाजक का काम कर सकता है क्योंकि तुझे पवित्र किया. David, you can become a king because you're anointed. दाऊद, अब तेरा अभिषेक किया गया इसलिए तू अब राजा बन सकता है. Listen, my friend, in Christ, God has anointed us. यीशु में आपका और मेरा अभिषेक हुआ है. Because He has anointed us, और चूंकि उसने आपका मेरा अभिषेक we किया है, can walk in the glory of God. हम परमेश्वर की महिमा में चल सकते We हैं. can walk in the power of God. हम परमेश्वर की सामर्थ्य में चल We सकते can हैं. walk in the authority of हम God. परमेश्वर के अधिकार में चल सकते हैं. How is this anointing? ये अभिषेक कैसे होता है? 1 John chapter 2 verse 27. और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है. Hold on. रुकिए यहाँ पर. John is writing to the church जो यूहन्ना है वो कलीसिया को लिख रहे हैं and he's saying, और वो कहते हैं the anointing that you have received from Him वो अभिषेक जो आपने उससे प्राप्त किया है abides in you. वो आप में बना रहता है. Listen, सुनिए, does the anointing abides upon you or in you? यहाँ क्या लिखा है? वो आप में बना रहता है या आप पे बना रहता है? क्या लिखा है? Aaron, upon him he poured the oil. हारून के ऊपर तेल डाला गया, Now you are anointed. पर अब आप में वो अभिषेक है. No, now Aaron became anointed. अब जो कि तेल डाला गया अब वो अभिषिक्त हो गया. Now listen, सुनिए, David, oil was poured on his head. दाऊद पर तेल डाला गया, He became anointed. अब वो अभिषिक्त हो गया. Oil was poured on anybody on the altar, it became holy. जब वो वेदी पर तेल डाला गया वो पवित्र हो गया. You will say, Pastor, you did not pour oil on me. पर आप कहेंगे पास्टर साहब आपने मुझ पे तेल नहीं डाला, I am not anointed. मैं अभिषिक्त नहीं You हूं. never came and poured oil on me. आपने आकर मुझ पे तेल नहीं The डाला. New Testament teaching says पर जो नई वाचा का जो सिद्धांत in है, 1 John chapter 2 verse 27, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 27वां पद, the anointing did not come upon you, it came in you. वो जो अभिषेक है वो आप पर नहीं आया, वो आप में आया. हालेलुया. When the anointed one walked in you, the anointing came in you. वो जो अभिषेक जब आपके जीवन में आया उसका अभिषेक भी आपके जीवन में आया. It is not that the day of salvation you said, Jesus, come into my life. वो जिस दिन उद्धार के दिन आपने कहा यीशु मेरे जीवन में आइए, He did not say, wait, let me keep my anointing. I am coming. और यीशु ने ऐसे नहीं कहा मैं अपना अभिषेक रख कर तुम्हारे पास आता हूं. No, ऐसा नहीं The हुआ. King of glory entered in. वो जो महिमा का राजा है वो आप में आया, He entered in वो you. आप में आया. As much anointed that he was always. वो उस अभिषेक जितना उसका हमेशा था उसके साथ आया. So now anointing is not coming from above, it's coming from inside out. अब वो अभिषेक आपके ऊपर से नहीं आ रहा, आप में वो आपके अंदर है. Jesus said there are rivers inside you. वो यीशु ने कहा तुम्हारे अंदर नदियां होंगी. He said the water that I give you will become rivers in you. वो जल जो मैं तुम्हें देता हूं तुम्हारे अंदर नदियां बन Why? जाएंगी. Because now nothing is coming from heaven, it is coming from you. अब स्वर्ग से नहीं, अब तुम्हारे अंदर से आएगा. Only once it came from heaven. वो एक बार स्वर्ग से It आया. was in Acts chapter 2. वो पेटों के दूसरे अध्याय में Holy है. Spirit came from heaven परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग and से then he उतरा never went back. और फिर वो वापस नहीं गया. Now he is in you अब वो आप में अंदर and he है. works in you and through you. वो आप में और आपके द्वारा काम The करता है. Bible says the anointing that happened from him to you is in you. वो अभिषेक जो आपके ऊपर आया वो आप में बना रहता है. Tell, I am anointed. कहिए मैं अभिषिक्त Come on, हूँ. everybody, say this. I am anointed. कहिए मैं अभिषिक्त हूँ. Jesus anointed me. यीशु ने मेरा अभिषेक किया. I am anointed. मैं अभिषिक्त हूँ. The Bible says वचन कहता है that anointed stays in you. वो अभिषेक तुम में बना रहता है. And it says और आगे लिखा है you don't need any man to teach you. अब प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, But anointing will teach you of all things. अब वो अभिषेक तुमको सिखाएगा. Wow. Amen. Anointing will teach you. वो अभिषेक आपको सिखाता है. There is an anointing inside of you एक अभिषेक है जो आपके अंदर है. that will teach you how to do great things. वो for God. आपको बताएगा बड़ी चीजें कैसे Who करनी है. taught Jesus how to heal? किसने बताया यीशु को चंगा करना? The anointing of God. वो परमेश्वर का अभिषेक जो उसके जीवन Who में था. taught Jesus how to raise dead? कैसे मुर्दों को जिंदा करना किसने सिखाया? Who taught यीशु him how को to walk on water? कैसे पानी पे चलना किसने Who taught सिखाया? him how to multiply bread? किसने कहा रोटी को बढ़ा देना? The Bible declares वचन कहता है the Spirit of the Lord which came upon Jesus taught him वो जो अभिषेक परमेश्वर का यीशु पे आया उसने उसे सिखाया. because Jesus was surrendered, क्योंकि वो समर्पित था, because Jesus was obedient. क्योंकि वो आज्ञाकारी था. If we become surrendered and obedient, अगर हम समर्पित और आज्ञाकारी बन जाएं, oh,
anointing is in us, वो अभिषेक हमारे अंदर है, we will see great things. हम बड़ी चीजों को होता You हुआ can walk देखेंगे। in authority of आप Christ आप अधिकार में, यीशु के अधिकार में चलने वाले हो because सकेंगे, Jesus is in you. क्योंकि यीशु आप में है। One last verse I want to give एक आखिरी you. पद मैं आपको Read दिखाऊंगा। Psalms 20, verse number 6. भजन संहिता उसका 20वां अध्याय, Verse number 6. उसका 6वां पद। अब मैं जान गया हूं कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है, वो अपने दाहिने हाथ से उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग से सुनकर उसे उत्तर देगा। See what does Bible says? देखिए क्या लिखा है, Now I know अब मैं जान गया हूं that God gives salvation to his anointed. परमेश्वर अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। So salvation comes first or anointing? तो क्या पहले आया, अभिषेक या उद्धार? Isn't it incredible? क्या ये अद्भुत नहीं है? This prophecy ये जो भविष्यवाणी है was not applicable for Old Testament. ये पुराने नियम के लिए नहीं थी, Because in Old Testament, क्योंकि पुराने नियम में nobody had salvation. किसी के पास उद्धार नहीं। Amen. This prophecy is for you and I. ये भविष्यवाणी आपके और मेरे लिए The है। Bible says, I anointed you. वचन कहते हैं मैं तुम्हारा अभिषेक किया To है। Jeremiah, God says, I anointed you from your mother's womb यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा तेरी माता के गर्भ से मैंने तेरा अभिषेक to किया be a है, prophet unto nations. ताकि तू राष्ट्रों के लिए एक भविष्यवक्ता हो जाए। Anointing is God's plan to set apart a person for a specific जो job. अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, वो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर के कार्य के लिए आपको अलग करने Oh, sorry, की। calling of God is God's plan. जो परमेश्वर का बुलाहट है उसके लिए आपको अलग करना। But anointing is the ability given to the mankind to fulfill that plan. पर जो परमेश्वर का अभिषेक है वो क्षमता है उस कार्य को पूरा करने का। That anointing remains in you, says वो John. अभिषेक आप में बना रहता है, यूहन्ना It's कहता not है। lie, it's truth. ये सत्य है, ये झूठ नहीं And it है, will always be there. और ये हमेशा बना रहेगा। This morning, church, आज की सुबह कलीसिया, I want you to know this. मैं चाहता हूँ इस बात को When जाने। you live in consecration, जब आप एक शुद्ध अलग किया हुआ जीवन जीते हैं, when you live holy and pure, जब आप पवित्र और शुद्ध जीवन जीते you हैं, will have boldness to face giants. आप बड़े बड़े जाइंट्स को झेल पाएंगे, You will have boldness to face your enemy. आप अपने शत्रुओं को से लड़ पाएंगे, You will have boldness to pray for impossible. आप असंभव चीजों के लिए प्रार्थना कर You पाएंगे, will have boldness to do great things. आप बड़ी चीजों के लिए सामर्थ पाएंगे। Listen carefully. ध्यान से सुनिए, Devil knows he cannot, short circuit your anointing. शत्रु को पता है कि वो आपके अभिषेक को कम नहीं कर सकता। So what he does, वो क्या करता है, he will rob you of your confidence on your anointing. वो आपका जो एक कॉन्फिडेंस है आपके अभिषेक पे, उससे आपको अलग करता है। And so once you lose the confidence, और एक बार जब वो कॉन्फिडेंस आप खो देते हैं, then you stop operating in the anointing. फिर आप उस अभिषेक में चलना बंद कर देते हैं, Because you are not confident if God will answer or no. आपको नहीं पता कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब देंगे या नहीं देंगे। Why? Because your eyes are not on him, your eyes are on you. क्योंकि आपकी आंखें अपने पे है, परमेश्वर पे नहीं। And devil keeps reminding you of your mistakes. और शत्रु बार बार आपको आपकी गलतियां स्मरण This कराएगा। morning I want to tell you, पर आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ, there is a greater covenant that covers our mistake. एक बड़ी वाचा है जो हमारी गलतियों को ढांप देता The है। blood of Jesus covers every mistake. यीशु का रक्त सारी गलतियों को ढांप देता And है, that blood और वो रक्त causes anointing to come. हमारे जीवन में अभिषेक के आने का कारण है। That blood वो रक्त causes anointing to come. हमारे जीवन में अभिषेक के आने का कारण है। Holy Spirit wants to do great thing in your life. this पवित्र morning. आत्मा बड़ी चीजें करना चाहते हैं। Just close your eyes and ask Lord, Lord, here I am. आंखें बंद कीजिए, कहीं पिता मैं यहाँ पर हूँ, Say, Lord, fill me with your glory. पिता मुझे अपनी महिमा से भर Say, दीजिए, Lord, here I am. मैं यहाँ हूँ पिता, Touch my life, Lord. मुझे छुइए प्रभु। As you anointed David जैसे आपने दाऊद का and अभिषेक Holy किया Spirit came upon him. और परमेश्वर का आत्मा उसे उतरता You गया, anointed Jesus. आपने यीशु का अभिषेक किया, Holy Spirit came upon him. परमेश्वर का आत्मा उस पर He उतरा, went about doing good things. वो भलाई करता फिरा। Your anointing is coming upon my life, Lord. मेरे जीवन पे तेरा अभिषेक आया। Right now, Father, I ask you to anoint me, पिता मेरा अभिषेक कीजिए, that I may walk in that anointing. ताकि मैं उस अभिषेक में चल सकूं। That John spoke about, that the anointing happened from Christ to you, अब यूहन्ना कहता है वो अभिषेक तुम यीशु की ओर से तुम्हारे जीवन में है and it remains in you. और वो तुम में बना रहता है। Do you know anointing is not leaving you? पता है आपका अभिषेक आपको छोड़ के नहीं जाता, It's there. वो यहीं पर है, It's there. वो वहीं पर है। The moment you become God conscious, जैसे आपको परमेश्वर का आभास होता है, you'll start operating in the anointing. आप उस अभिषेक में चलने लगते हैं। Sin will slow you down. पाप आपको धीमा करता है, Holiness will propel you. पर पवित्रता ही आपको तेज कर देती है। This morning, ask Lord, Lord, I come to you. आज पिता से कहे, पिता मैं तेरे समीप आता हूँ, Touch my life. मेरे जीवन को छू लीजिए। Come on, make a prayer in your एक heart. प्रार्थना कीजिए,
Everyone, close your eyes and say, Lord, here I am. सारे लोग आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पिता मैं यहाँ हूँ, Anoint me, Lord. मेरा अभिषेक कीजिए, Wash me, Lord. मुझे शुद्ध कीजिए, साफ कीजिए, Fill me with your Holy Spirit मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए and use me for your glory. और मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I surrender to you. मैं समर्पण करता हूँ, I surrender to you. मैं यीशु के नाम से समर्पण करता This हूँ। morning, O God, आज के सुबह पिता, no longer I live, but Christ lives अब in me. मैं नहीं, मुझ में यीशु जी से, I believe, Jesus, मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। you are my righteousness. आप मेरी धार्मिकता है And because you are my और righteousness, चूंकि आप मेरी धार्मिकता है, oh, I carry your anointing. मैं तेरे अभिषेक को लेकर Thank चलता you हूँ। once again. धन्यवाद एक बार Come on, फिर। let's open our eyes and open our mouth and begin to pray. मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए अपने लिए, Open your mouth and begin to pray. अपना मुंह खोलिए, प्रार्थना कीजिए। Ask Lord, Lord, give me more, give me more. वो कहिए पिता मुझे और दे, पिता मुझे I और need दे, more of your anointing. Oh मुझे तेरा God. अभिषेक और चाहिए, Increase the level of my anointing. Oh मेरे God. मेरे अभिषेक का स्तर बढ़ा Oh दे, God, give me anointing for my city. मेरे शहर के लिए मुझे अभिषेक Oh कर, Lord, the anointing for breakthroughs. मुझे छुटकारे के लिए अभिषेक Lord, कर, use me, oh God. मुझे इस्तेमाल कर पिता। Lord, as I walk in your anointing, जब मैं तेरे अभिषेक में चलता हूँ, help me to operate in your authority. मुझे तेरे अधिकार में चलने में सहायता कर Lord, in the name of Jesus, पिता, यीशु के नाम से may I walk in your authority. मैं तेरे अधिकार में चल सकूं। Thank you, Father, for what you have done. धन्यवाद पिता जो आपने किया In है, mighty name of Jesus Christ. यीशु के सामर्थी नाम से। Amen.